Welcome to FK Super Classes. Today's topic is light reflection and refraction. It is chapter 10. This lecture is for class 10th standard. It is a third lecture on this topic. In the first lecture, I have discussed what is light, what are the differences between reflection and refraction. I have also explained rectilinear propagation of light. Also discussed in detail difference between real images and virtual images. And also discussed in detail image formation by plane mirror. In the second lecture, I have given in-depth knowledge of spherical mirror, discussed in detail parameters of mirror, explained the relation between focus and radius of curvature. Also discussed in detail sign convention of spherical mirror, mirror formula and linear magnification, and discussed spatial rays for formation of image, and in detail explanation of image formation by a spherical mirror. So this is a third lecture. In this lecture, I will explain refraction. What is refraction? What is refractive index? Relation between angle of incidence and angle of refraction, which is also called Snell's law. I will explain what is denser medium and rarer medium. I will also explain total internal reflection. And some question answer session will also be held. The link of both the lecture is given in description box. Please go through the link for better understanding. Refraction. What is refraction? जब लाइट रेज एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में जा रही हो, देन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. जब लाइट रे एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में जाए तो उस केस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट. व्हाई? बिकॉज लाइट चूज द क्विकेस्ट पाथ. लाइट इज ऑलवेज इन हरी. सो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट चूज करती है क्विकेस्ट पाथ को, जिसकी वजह से देयर इज सम बेंडिंग इन द लाइट रेज, एंड दैट बेंडिंग इज नोन एज द रिफ्रैक्शन. द शॉर्टेस्ट पाथ इज द क्विकेस्ट पाथ. सिंस light is always in a hurry, it bends when it enters a different medium, as it is still following the quickest path. This phenomena of light bending in a different medium is called refraction. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो there is bending of light in another medium. That bending of light is known as the refraction. क्यों होती है ये bending? It bends when it enters a different medium, as it is still following the quickest path. Because light is always in a hurry. Light always follow the quickest path. Refraction is the phenomena that takes place due to the bending of light when it travels from one medium to another medium. अगर एक ही मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो उस केस में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब भी एक से ज़्यादा मीडियम होगा देन देयर विल बी अ रिफ्रैक्शन. द बेंडिंग इज काउज्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन डेंसिटी बिटवीन द टू सब्सटेंसेस. बेंडिंग क्यों हो रही है? इसलिए कि जो डेंसिटी है ना दोनों मीडियम का वो अलग अलग है.
फॉर एग्जाम्पल एयर है, एयर से वाटर में जा रही है तो द डेंसिटी ऑफ एयर इज डिफरेंट, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज डिफरेंट। अगर एयर से ग्लास में जा रही है लाइट तो द डेंसिटी ऑफ एयर इज डिफरेंट, डेंसिटी ऑफ ग्लास इज डिफरेंट। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेज इन डेंसिटी between the two medium, the bending of light is caused. Refraction is the change in the direction of light passing from one medium to another. हम हर तरीके से अलग अलग सेंटेंस में आपको एक ही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. It is because of the refraction of light we are able to focus light on our retina. यहाँ देखिए रिफ्रैक्शन को हमने दिखाने की कोशिश की है. Refraction of light, the bending of light at the interference of the two different medium is called refraction of light. The bending of light at the interference of the two different medium, जो बाउंड्री है ना दोनों मीडियम का, वहाँ पे जो बेंडिंग है ना लाइट का, वो क्या है, रिफ्रैक्शन है. यहाँ देखिए आप, मैंने दिखाने की कोशिश की है. ये लाइट जो है यहाँ से जा रही है, N1 से जा रही है, N1 से जा रही है, ठीक है, N2 वाले मीडियम में. यू सी देयर इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन N2 मीडियम देयर इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट. ये लाइट ऐसे जा रही है, बट आफ्टर गोइंग टू दिस मीडियम इट जस्ट बेंड्स. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट is called the refraction of light. If the velocity of light in medium is more, then medium is called optically rarer medium. अगर velocity of light medium में ज़्यादा है तो उस medium को हम क्या कहेंगे, optically rarer medium है. ये इससे क्या समझ में आ रहा है कि जिस मीडियम का डेंसिटी कम होगा, जिस मीडियम का डेंसिटी कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और उस मीडियम को हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे. जिस मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा हो या डेंसिटी कम हो जाए तो उस मीडियम को हम क्या कहेंगे कि ये रेयरर मीडियम है. एग्जाम्पल, एयर वैक्यूम इज़ मोर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. एयर और वैक्यूम जो है ना, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है कंपैरेटिवली टू अदर मीडियम, तो हम एयर और वैक्यूम को क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम है. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज़ लेस, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में कम हो जा रहा है, इट मीन्स अगर डेंसिटी उस मीडियम का ज़्यादा है, देन मीडियम इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाए, या फिर आपको अगर डेंसिटी दिया हुआ है, अगर डेंसिटी उस मीडियम का ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे डेंसर मीडियम. फॉर एग्जांपल, अगर एयर से कोई लाइट जा रही है ग्लास में तो एयर की डेंसिटी कम है ग्लास की डेंसिटी से, तो उस केस में क्या होगा, एयर जो है वो रेयरर मीडियम कहलाएगा और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा. और स्पीड ऑफ लाइट पे बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, रेयरर मीडियम. ग्लास में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट वहाँ कम हो जा रही है, तो उस केस में ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम. समझे बात को. आपको हमने दो तरीके से समझाया, एक तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म में समझाया, एक डेंसिटी के टर्म में समझाया. आगे एक टर्म में और समझाएंगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. तो एग्जाम्पल, ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर. अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए भी आप बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम जो है वो रेयरर है, कौन सा डेंसर है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना लाइट बेंड किया उस मीडियम में जाने के बाद, ये हमें कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये आपको ये बताएगा कि कितनी बेंडिंग हुई है लाइट की जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगे? ये मीडियम कितना डेंसर है, कितना रेयरर है, कितनी बेंडिंग ऑफ लाइट है, कितना स्पीड ऑफ लाइट कम होगा या ज़्यादा होगा। यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन बाय नोइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The refractive index, also called the index of refraction, describes how fast light travels through the material. कितना तेज लाइट ट्रेवल कर रही है उस मटेरियल में, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट क्या है उस मीडियम में। दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर अ गिवन मटेरियल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio between the speed of light in a vacuum and the speed of light in the medium. एक गिवन मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालिएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड कर दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम में का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट ट्रेवल की है एयर टू ग्लास, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। पता है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, देन कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देन इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और एयर एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। चूंकि अब आप देखिए, जो म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, तो डायमेंशन है वो कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो इट विल बी अ डायमेंशनलेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डायमेंशनलेस। चूंकि मीटर अपॉन सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी है और मीटर अपॉन सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी है, तो ये कट हो जाएंगे। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने सीखा, क्या सीखा? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकालेंगे। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिया हुआ है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो सिंपली डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Based on the refractive index of the medium, the light ray changes its direction or it bends at the junction separating the two media. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, उसके हिसाब से जो लाइट रेज है ना, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, वो बेंड करती है। वो जो बेंडिंग है ना, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से। जैसे एयर से ग्लास में लाइट गई तो जो बेंडिंग होगी, कितना बेंड होगा, वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास पे। अगर जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम बेंडिंग। इफ द लाइट रे travels from one medium to another of a higher refractive index, it bends towards the normal, else it bends away from the normal. अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया, एयर से ग्लास में जा रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज़्यादा है एयर से। ओके, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल के तरफ बेंड होगा। ठीक है, अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, फाइन, मतलब एक मीडियम से
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है से दूसरे मीडियम में जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एल्स इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट रे ग्लास से निकली है, एयर में जा रही है, तो कैसी ट्रेवलिंग हो रही है? डेंसर टू रेयरर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल हो रहा है। इस केस में जो लाइट किधर बेंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ध्यान रखिएगा, जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाएगा तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। The extent to which light bends when moving from one medium to another is called the refractive index. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट कितना बेंड हुआ, द एक्सटेंट टू विच लाइट बेंड्स, ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगा आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। दिस डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द स्पीड इन द टू मीडिया। और अभी हमने समझा भी पीछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। So this depend on the ratio of speeds in the two medium. Refractive index depends on the ratio of the speed in the two media. The greater the ratio, the more the bending. जितना ज़्यादा ratio of the speeds होंगे between the two media, उतना ही ज़्यादा bending होगा. The greater the ratio, the more the bending. It is also the ratio of the sine of the angle of incidence and the sine of the angle of refraction, which is a constant for any given pair of media. Refractive index जो है ना, एक तो हमने समझा कि जो speed of light है in first medium to the speed of light in second medium, ये जो रेशियो है ना वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का? वो है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. It is the ratio of the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction, which is a constant for any given pair of media. आप इसके जरिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. It is denoted by mu is equal to sine of angle I upon sine of angle R. एक फॉर्मूला तो ये हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R. और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पहले स्लाइड में जो पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से निकाल सकते हैं. अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालिएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट in a vacuum to the speed of light in the substance of interest is known as the refractive index. Mathematically, it is represented as mu is equal to c by v, जो हमने पिछले स्लाइड में समझा, where c is the speed of light in air or vacuum and v is the speed of light in medium. So, refractive index of medium is equal to c upon v, where mu is the refractive index of medium, c is the velocity of light in vacuum and v is the velocity of light in that particular medium. ये हमने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया. इस स्लाइड में हमने ये समझा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म में इंफॉर्मेशन है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकाल सकते हैं. वो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Refractive index, it represent the amount or extent of bending of light when it passes from one medium to another. ये हमने समझा कि refractive index क्या है
कि ये रिप्रेजेंट करता है कितना अमाउंट लाइट बेंड हुई है जब ये पास हुई है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो ये जो अमाउंट और ये एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है ना, ये दैट इज नॉन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? The refractive index of one medium with respect to another medium is called the relative refractive index. Relative refractive index क्या है कि जो refractive index है ना एक मीडियम का with respect to another medium, किसी भी दो मीडियम के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल गिलास या वाटर हो। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अगर उनमें से एक मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एक मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, ये दो मीडियम होंगे जिसमें एयर नहीं होगा, ये ख्याल रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक मीडियम एयर आ जाएगा तो उस केस में क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर के अलावा दो मीडियम है, वाटर है, ग्लास है, ऑयल है, ग्लास है, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। लेकिन अगर एक मीडियम एयर हो और दूसरा मीडियम कोई भी हो तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा टर्म्स का कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहलाएगा, एब्सोल्यूट कब कहलाएगा, ये डेफिनेशन पूछ लिए जाते, इसलिए हमने इसको स्लाइड में रखा है, ये ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन टेकन विथ रेस्पेक्ट टू अ वैक्यूम इट्स नॉन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई भी दो मीडियम है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फाइंड आउट किया उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर उस मीडियम में एक मीडियम वैक्यूम है तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ख्याल रखिएगा, डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में नहीं आना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, कोई भी दो मीडियम होगा भाई, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लास वाटर हो जाए, वाटर ऑयल हो गया, ग्लास ऑयल हो गया, इस केस में आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर उन्हीं में से एक मीडियम वैक्यूम है और दूसरा मीडियम कोई भी हो तो उस केस में जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर, एयर ग्लास, एयर ऑयल। सो इन दिस केस the refractive index will be called the absolute refractive index. Refractive index of diamond is highest till date. आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है? डायमंड का है। तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो डायमंड में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट वो बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू एयर और वैक्यूम। क्यों? इसलिए कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि उसकी डेंसिटी डायमंड की ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि डायमंड डेंसर मीडियम है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो जाएगी क्योंकि डायमंड हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो हाईएस्ट है, इट इज़ 2.42। कितना है डायमंड का? 2.42। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो डिवाइड हो जाएगी 2.42 से, और जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी आफ्टर डिवीजन दैट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इट मीन्स 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी डायमंड में। स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी as compared to speed of light in vacuum or air. It means speed of light is 1/2.42 times less in diamond than in vacuum.
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हमने समझा दिया आपको। आउट ऑफ टू गिवन मीडियम, द मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। हमने अब आपको 3 तरीके से समझा आपने डेंसर मीडियम का एक्सप्लेनेशन। पहला आपके स्पीड ऑफ लाइट पे समझाया कि स्पीड ऑफ लाइट अगर उस मीडियम में कम हो जा रहा है तो वो डेंसर मीडियम है। दूसरा हमने आपको समझाया कि अगर उस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है पहले वाले मीडियम से तो वो मीडियम डेंसर कहलाएगा। तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उस मीडियम का देन दैट मीडियम विल बी कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यह ध्यान रखिएगा, डेंसर मीडियम को हमने 3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, 3 डिफिनेशंस दी हैं। If the velocity of light in medium is less, the medium is called optically denser. Example, glass is more denser than air. Optically rarer medium क्या हो जाएगा? Out of two given medium, the medium with lower value of refractive index. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर मीडियम कहलाएगा। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो वो रेयरर मीडियम कहलाएगा। जिस मीडियम की डेंसिटी कम रहेगी तो वो रेयरर मीडियम कहलाएगा। हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन दे करके कि कौन सा डेंसर मीडियम है कौन सा रेयरर मीडियम है। सो इन तीनों डिफिनेशन को ध्यान रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि डेंसर मीडियम कब कहलाएगा, रेयरर मीडियम कब कहलाएगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज मोर द मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में ज़्यादा हो रही है देन मीडियम इज कॉल्ड द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एग्जाम्पल, एयर और वैक्यूम इज मोर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब यहाँ देखिए, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की थी। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? वो परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द मीडियम। जो दो मीडियम का जो बाउंड्री है ना उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल इज एन इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द मीडियम, परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द मीडियम। ओके, फाइन। अब इस नॉर्मल से आपको एंगल निकालना है इंसिडेंट रे का और रिफ्रैक्टेड रे का। जो एंगल इंसिडेंट रे क्या है हमने पहले लेक्चर में भी समझाया आपको कि जो लाइट आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लाइट ए से आ रही है, जो लाइट आ रही है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। जो लाइट आ रही है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे और जो दूसरे मीडियम में लाइट चली गई उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। फॉर एग्जांपल, लाइट ए आई और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई और वो लाइट बी हो गई। तो जो इंसिडेंट रे क्या है कि जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे है और वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्शन हो गई, दूसरे मीडियम में लाइट चली गई, वो जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अभी हमने पिछले स्लाइड में समझा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंड एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? वो है एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इसके ज़रिए भी हम म्यू निकालते हैं। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर रिफ्रैक्शन दिखाया गया है कि लाइट एयर से आ रही है, ग्लास में जा रही है। When light travel from air into glass, जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो लाइट स्लोज डाउन, लाइट स्लो हो जा रही है, उसकी स्पीड कम हो जा रही है। क्यों? इसलिए कि ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। एंड चेंजेस डायरेक्शन स्लाइटली, और अपने डायरेक्शन को हल्का चेंज किया है। किधर किया है बताइए, जल्दी बताइए। वो हल्का सा देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? इसलिए कि लाइट
रेयरर मीडियम से आ रही है, एयर से आ रही है, डेंसर मीडियम को जा रही है, ग्लास में जा रही है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी हमने पढ़ा है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, रे डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको कि ये लाइट हल्का बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सी, अगर ये लाइट बेंड नहीं होती तो ये सीधे ऐसे निकल जाती, निकलती है नहीं निकलती, निकलती ना इस तरीके से, बट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसने हल्का इसने बेंड लिया, क्यों? इसलिए कि इसका मीडियम चेंज हो गया है, ये ग्लास मीडियम में जा रहा है जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है, ये डेंसर मीडियम है। When light travel from a less dense substance to a more dense substance, अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, लेस डेंस सब्सटेंस से मोर डेंस सब्सटेंस की तरफ जा रही है, देन रिफ्रैक्टेड लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम लेस डेंस सब्सटेंस, यानी कम डेंसिटी वाले सब्सटेंस से, टू अ मोर डेंसर सब्सटेंस, यानी ज़्यादा डेंसिटी वाले सब्सटेंस की तरफ जा रही है, मीन्स रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, देन रिफ्रैक्टेड लाइट बेंड्स मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ना, वो किधर बेंड करेगी? नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल के साइड में बेंड करेगी। इफ़ द लाइट वेव अप्रोचेज द बाउंड्री इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, अगर यही लाइट रे जो इंसिडेंट रे है ना, वो बाउंड्री को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर अप्रोच करती है, देन लाइट रे डजंट रिफ्रैक्ट। ये नहीं कि हाँ दो मीडियम है तो रिफ्रैक्शन होगा ही हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। अगर लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, बाउंड्री के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देन लाइट रे डजंट रिफ्रैक्ट, लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं करेगी डिस्पाइट द चेंज इन स्पीड। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, देन देयर विल नॉट बी रिफ्रैक्शन। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी बट देयर विल नॉट बी रिफ्रैक्शन, ये ध्यान रखिएगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब हम लॉज पढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज पढ़े थे, यहाँ भी दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, ये ध्यान रखिएगा। एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या दो लॉ थे, हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ यहाँ बताते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of the two media at the point of incidence all lie on the same plane. Incident ray, refracted ray or normal at the point of incidence all lie on the same plane, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। आप इसको कंपेयर कीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, वहाँ भी क्या था कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same plane at the point of incidence, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या आ गया? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। फाइन, वहाँ रिफ्लेक्टेड रे थे, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे आ गया। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है लाई ऑन द सेम, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ, वहाँ सेकंड लॉ क्या था रिफ्लेक्शन के केस में? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर सेकंड लॉ देखिए, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया पिछले स्लाइड में, वही चीज़ है। यहाँ देखिए, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कॉन्स्टेंट होगा। क्या होता है? म्यू मिलता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है जो डायमेंशनलेस है, जो कांस्टेंट है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज साइन आई, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने आपको पहले समझा दिया इसको, बाद में हम ये लॉ लेकर के आए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपसे
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे, इन दोनों लॉ को लिखना है। दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नो रिफ्रैक्शन अकर्स, कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा? ये नहीं, आपको अभी हमने समझाया भी कि दो मीडियम को देख कर रिफ्रैक्शन मत बना दीजिएगा। अगर लाइट परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री लाइन इंसिडेंट हो रही थी तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था। पिछले स्लाइड में हमने आपको समझाया है, फिर भी हमने यहाँ पॉइंट एक स्लाइड इसके लिए स्पेशल बनाई है ताकि आपको याद रहना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री लाइन ऑफ द टू मीडिया, देन इन दैट केस नो रिफ्रैक्शन अकर्स। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री। और दूसरा क्या हो सकता है? और कोई पॉइंट हो सकता है कि जहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हो? एनी गेस, एनी इंफॉर्मेशन, प्लीज कमेंट। यस, उस केस में जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे अगर दो मीडियम है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा, देन देयर विल नो बेंडिंग, हेंस नो रिफ्रैक्शन। सेकंड क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट आर इक्वल। अगर दोनों मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, दो मीडिया देख करके आप नहीं बना दीजिएगा हाँ रिफ्रैक्शन होगा। लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ये सब चीज़ को ध्यान रखना आपको। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बताइए क्या हो सकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन में इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, अभी हमने पढ़ा, आप लॉज में भी पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। स्नेल्स लॉ भी है कि इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ देखिए, अच्छी चीज़ आपको समझा रहे हैं, यहाँ दो मीडियम भी है फिर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा कि जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है ना तो लाइट है ना, जैसे ये गई, सॉरी, जैसे ये लाइट है ये गई, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे जैसे जैसे ये एंगल हम बढ़ाते जाएंगे ना तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता रहेगा। जैसे एक एंगल आएगा जहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो पैरेलल टू द बाउंड्री हो जाएगी। वो क्रिटिकल एंगल होगी जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बाउंड्री लाइन हो गई। उसके आगे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे ना तो वो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो पूरे पूरे अंदर ही आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी वो। यही दिखाने की हमने कोशिश की है। सी, यहाँ पे ये एंगल है, इस एंगल को हमने बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बढ़ाया। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, इससे ज़्यादा बढ़ाया तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो पैरेलल टू द बाउंड्री लाइन हो गई, पैरेलल टू द बाउंड्री लाइन। फाइन। अब इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। इस एंगल पे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज़ पैरेलल टू द बाउंड्री लाइन। फाइन। इसके आगे जो भी एंगल होगा ना इस क्रिटिकल एंगल के, तो उससे जो लाइट है ना वो टोटल के टोटल उसी मीडियम में वापस हो जाएगी। क्रिटिकल एंगल से ऊपर वाले एंगल पे जो भी लाइट इंसिडेंट होगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टोटली जो है वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, दूसरे मीडियम में लाइट नहीं जाएगी। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जहाँ पर लाइट पैरेलल टू बाउंड्री लाइन हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उससे ऊपर वाले जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे उस पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ध्यान रखिए कब होगा? जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगा तभी वो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहला कंडीशन क्या है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम।
The angle at which the incident ray causes the refracted ray to go along the surface of the two media parallelly is called the critical angle. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्टेड रे जो है वो जो सरफेस ऑफ द टू मीडिया है, जो बाउंड्री लाइन है, उसके पैरेलल हो जाए, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल. अब उस क्रिटिकल एंगल के ऊपर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द critical angle, it reflect inside the denser medium instead of refracting. ये क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा. इसलिए इस तरह के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब डेंसर मीडियम से ही स्टार्ट हुई लाइट, इंसिडेंट हुई, लेकिन इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था. क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर हमने लाइट को इंसिडेंट की तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो पैरेलल टू बाउंड्री लाइन हो गई, और उससे ऊपर के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सारी की सारी लाइट जो इंसिडेंट हुई है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनसाइड द सेम डेंसर मीडियम इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्टिव. दिस फिनोमेना इज नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आपने देखा रिफ्रैक्शन में भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं. कितने मज़े की बात है, पढ़ रहे हैं दो मीडियम पे, लेकिन हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ा करके एडजस्ट किया कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो पैरेलल टू बाउंड्री लाइन हो जाए, और उससे ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस किया तो टोटल के टोटल रे वो रिफ्लेक्ट हो गई इन द सेम डेंसर मीडियम. एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर में आपको देखने को मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मिराज एक एग्जाम्पल अच्छा है इसका. वाई डू ए स्टार ट्विंकल, बहुत इंपॉर्टेंट. इस पर हमने बहुत अच्छा एक लेक्चर बना रखा है स्पेशल इसी पे कि वाई डू ए स्टार ट्विंकल, वाई नॉट सन एंड अदर प्लैनेट. उसको देखिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहाँ आप अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. हर चीज़ को समझाया है कि क्यों डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, वाई एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट for twinkling of stars. Description box में link given है, please go through the link for better understanding. Twinkling effect of a star is due to the atmospheric refraction. The starlight undergoes several refraction while reaching the earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. अब देखो जो स्टार है वो स्पेस से ऐसा दिखता है, as it appears from space. इस तरह का दिखता है स्पेस में, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू टर्बुलेंट एटमोसफियर ए स्टार एज इट अपीयर एट द सरफेस पे इस तरह का दिखता है हमें. मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको वाई डू ए स्टार ट्विंकल, वाई नॉट सन और अदर प्लैनेट्स. ज़रूर देखिए इस लेक्चर को. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन रियल लाइफ. मिराज एंड लूमिंग आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मिराज क्या है, जैसे आप डिज़र्ट एरिया में देखे होइएगा कि बहुत दूर पे लगता है कि पानी है, पानी की तरह चमकता होता है. दैट्स इल्यूजन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लूमिंग ठंडे एरिया में होता है कि कोई चीज़ है ऊपर लटकी हुई दिखती है. दैट रिजल्ट फ्रॉम द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. A swimming pool always looks shallower than it really because of the light coming from the bottom of the pool bends at the surface due to the refraction of light. Swimming pool जो है वो हल्का सा उठा हुआ दिखता है ऊपर, जबकि गहराई ज़्यादा होती है because of the refraction of light. Formation of rainbow is an example of refraction as the sun rays bends through the raindrops resulting in the rainbow. वाई स्काई इज़ ब्लू, इस पर भी हमने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, इसको भी ज़रूर देखिए. इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. वाई स्काई इज़ ब्लू, वाई नॉट ग्रीन और रेड. प्लीज़ गो थ्रू द लिंक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट इज़ स्प्लिट इनटू कंपोनेंट कलर्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जब वाइट लाइट पड़ती है प्रिज्म पे, इट स्प्लिट्स इनटू component colors red, orange, yellow, green, blue and violet. That's due to the refraction of light. Application of refraction of light. Application क्या है refraction of light का?
Refraction has many applications in optics and technology. A few of the prominent applications are listed below. Explain किया जा रहा, बताया जा रहा आपको क्या क्या applications है. A lens uses refraction to form an image of an object for various purposes such as magnification. Spectacles worn by people with a defective vision use the principle of refraction. Refraction is used in peepholes of house doors, cameras, मूवी प्रोजेक्टर्स एंड टेलीस्कोप्स. ये सब जो है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. नाउ क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन देखते हैं रिफ्रैक्शन पे. हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे. अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर. एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से निकल के वाटर में जा रही है. डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई. किधर होगा, आपको समझाया हमने कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, मीन्स रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ बेंड्स करेगा. सी द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जो लाइट रे वो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल. When a light ray enters from an optically rarer medium which has a low refractive index to an optically denser medium which has a high refractive index, its speed slows down and bends towards the normal. इसकी speed जो है वो slow हो जाती है, so it bends towards the normal. As water is optically denser than air, a ray of light entering from air into water will bend towards the normal. Next question. लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. अब एयर से ग्लास की तरफ लाइट जा रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50. यहाँ म्यू दिया हुआ है आपको 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास. स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. आपको पता है म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई, आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है इन द ग्लास, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई म्यू कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको v आ जाएगा. v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू. चूँकि अगर v इधर कर दीजिए, म्यू को यहाँ ले आइए, तो v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू. ये कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपको. ठीक है, हमने आपको समझा दिया था पहले ही कि म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इस क्वेश्चन के हिसाब से. सॉल्यूशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is given 3 × 10⁸ meter per second. Refractive index is given 1.50. Speed of light in the glass is equal to speed of light in vacuum upon refractive index, and that comes to 3 × 10⁸ अपॉन 1.50 से डिवाइड कर दिया आपने, तो आगे आंसर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है, देख लीजिए एक चीज़ को, एयर है, आइस है, वाटर है, अल्कोहल है, केरोसिन है, मतलब मटेरियल दिए हुए हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, हाईएस्ट डेंसिटी वाले मटेरियल का नाम बताना आपको, और लोवेस्ट डेंसिटी वाले मटेरियल का नाम बताना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसका डेंसिटी सबसे कम होगा. ठीक है, इसमें से देख लीजिए किसका सबसे कम है. यहाँ एयर का सबसे कम दिख रहा मुझे, और सबसे ज़्यादा दिख रहा है 2.42 डायमंड का. ठीक है, तो 2.42 डायमंड है, तो डायमंड हाईली डेंसिटी वाले मटेरियल हो गए और लोवेस्ट डेंसिटी वाले एयर हो गए. द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो हमने पहले समझा दिया आपको कि जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा डेंसिटी. अ मीडियम विद द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा. It can be observed from the table. The air and the diamond respectively have the lowest and the highest refractive index. Air का सबसे कम है as per table and diamond का सबसे ज़्यादा है.
लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर का हो गया, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड का हो गया। Hence air has the lowest optical density and diamond has the highest optical density. Next question, again आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? यू आर गिवन अ कीरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, ये तीन चीज़ दिए गए हुए हैं। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा किस में लाइट ट्रेवल होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें लाइट उतना ही कम हो जाएगा, राइट? उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है ना, उसमें लाइट सबसे तेज़ भागेगी भाई, ये ध्यान रखिएगा। बस जिसका कम है उसमें सबसे ज़्यादा जाएगा। केरोसिन है, टर्पेंटीन है एंड वाटर है। देख लीजिए केरोसिन का कितना है 1.44, टर्पेंटीन का कितना है 1.47 एंड वाटर का कितना है 1.33। तो इसमें सबसे कम किसका आ रहा है? वाटर का आ रहा है। द स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल फास्टर इन वाटर एज कम्पेयर टू केरोसिन एंड टर्पेंटाइन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लोअर दैन दैट ऑफ केरोसिन एंड टर्पेंटाइन। ओके, चूँकि वाटर का सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या है मीनिंग इस स्टेटमेंट का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है। इसका मतलब यही है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। A diamond has a refractive index of 2.42, which means that the speed of light in a diamond will reduce by a factor of 2.42 as compared to its speed in the air. जो एयर में स्पीड है उससे 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी डायमंड में। In other words, the speed of light in diamond is 1/2.42 times the speed of light in a wave. वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, हमने अपने दोनों लेक्चर का लिंक दे रखा है और साथ साथ वाई स्काई इज़ ब्लू इसका भी लिंक दे दिया है, वाई नॉट ग्रीन एंड रेड, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे जो हमने एक लेक्चर जो बनाई थी उसका भी दे दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।